Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the 17th lecture of Math 120. Today we are going to start the second part of this course, which is the differential equations. I hope you already know a little bit about the differential equations, but we shall start from the very beginning, from the very first definition of differential equations, and then we shall move on. So, first of all, what is a differential equation and where do these equations come from? Informally, if we define a differential equation, is that an equation which involves derivatives of a function is called a differential equation. Derivatives, I hope you know, derivative could be first derivative, second derivative, both. An equation can involve first derivative, second derivative, or both at the same time. Such kind of equation is called a differential equation. How can we construct differential equations from simple functions? For example, on this slide, I have presented you two examples. The first one is, look at the function on the left hand side, which is y is equal to e raised power 3x squared. This is the original function. Now, if we take the derivative of y with respect to x, so y being a dependent variable here and x is the independent variable. So we take derivative on both sides with respect to x. So what do we get here? Dy by dx is equal to 6x times e raised power 3x squared. Now, if you notice that this term is equal to what? This is equal to y. So we can replace e raised power 3x squared by y. And we obtain here dy by dx is equal to 6xy. If we take the 6xy on left hand side, what do we get? An equation. This is an equation, and this equation involves derivative of a function. Actually, what is a function here? Y. Y is a function, as we can write y is equal to f of x. So in fact, this is the function. Okay. So this equation involves a derivative of a function. So any equation that involves derivative or derivatives of a function is called a differential equation. So this is how we can construct mathematically differential equations. Similarly, on the right hand side, if you look at the function given, which is y is equal to 4 sine 4x. Now, if we take the derivative with respect to x on both sides, what do we get? dy by dx is equal to sin x का derivative cos x, and then angle का derivative यहाँ पे 4x का derivative 4 आ जाएगा. So we get this one. Now, again differentiating this equation, we get d square y by dx square is equal to minus 16 sine 4x. Now, you again notice here that sine 4x is what? It is sine 4x is equal to y. So we sine 4x by y here, and what do we get here? We get an equation which involves second derivative of a function. So this is also an example of a differential equation. This is how we can construct differential equations mathematically from the given functions. Now, what if we want to go reverse? Okay. If we are given this differential equation, how can we, let me clear this thing. If we are given this differential equation, how can we find this function? Before we discussed, if the function is given, how can we construct a differential equation? Now, what if we are given a differential equation, how can we reach at the function which is basically from where we started to obtain this differential equation? Similarly, if we are not given this function,
we are simply given this differential equation, how can we reach at the original function? Okay. Why it is important to reach at the original function? Because this function satisfies this differential equation. Also, you can check it. आप इसमें you can substitute the value of y here, ठीक है, and then simplifying you can देखें यहाँ पे dy by dx किसके इक्वल होगा? It should be 6x e raised power 3x square minus 6x और y की वैल्यू क्या है? Y की वैल्यू e raised power 3x square, ठीक है, ये आ गया इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी जीरो आ गया, ठीक है, और ये भी जीरो आ गया. So the equation has been satisfied. So this means that this equation has a solution, this function, or you can say this function is the solution of this differential equation. Now, what do we want from equations in mathematics? We want to solve them, we want their solutions. Okay? So similarly, if you insert this function here in this differential equation, what do we need here? First one is two derivatives of the given function. Okay? Two derivatives क्या हैं इसके? -16, यहाँ से देख ले, two derivatives आपके पास -16 sin 4x है, ठीक है, minus again 16 और y की वैल्यू sin 4x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. What do we get here? 0 is equal to 0. So equation is being satisfied. What does it mean? It means that this function is a solution of this differential equation. Okay. So usually, what do we want from equations? Whether it is an algebraic equation, quadratic equation, or a differential equation, what do we want from these equations? We need to solve them. We need to find their solutions. Okay. Equation को solve करेंगे तो what do we get? We get roots. ठीक है. यहाँ पे differential equation को solve करेंगे तो what do we get? We should get a function y is equal to say f of x or phi of x, ठीक है, which satisfies this differential equation. Then this function is called solution of the given differential equation. Okay. So any function which satisfies the given differential equation is basically solution of a differential equation. Okay. Is this possible that a differential equation can have different solutions? Yes, it is possible. Okay. We'll discuss these things later on when we finish discussing basic concepts of differential equation. If you have any question, you can ask me. सर इसमें जो इक्वेशन 2 है उसमें जब हम 16y को साइड पे लेके जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, वो तो नेगेटिव भी रह रहा है. हाँ यार, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा. तो ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. ये पॉजिटिव ही है यार, आप देखो पॉजिटिव लिखा हुआ है. जी सर, अब ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था. थैंक यू वेरी मच. डेफिनेटली देखिए टाइपो मिस्टेक्स तो हो सकती है ना, कोई भी कर सकता है. अगर यहाँ पे -16 है तो डेफिनेटली उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ऑब्वियसली. सो आई होप कि यू कैन understand these kind of mistakes. So let's move forward. Go to the next slide here. This is what I have already explained you. Okay, if we are given the differential equations now, okay, this is a differential equation, this is a differential equation, and we don't know where do these equations come from. What are the functions which satisfy them? Now, if we are directly given these kind of differential equation, what do we want from these equations? We want a function which is the solution of this differential equation. Okay, so a function could be denoted by y is equal to phi of x. Now we want to find this kind of function which satisfies the given differential equation. Okay, another function, this is for example phi1 which satisfies the first equation, and another function phi2 which satisfies the second equation. We need to find these kind of functions which are basically solutions of the differential equation. Okay. Now, what is a differential equation? Informally, an equation which involves derivatives of functions. It could be more than one functions as well.
we'll discuss this formally on the next slide. An equation which involves derivatives of a function is called a differential equation. If you have any question, you are most welcome to ask. यहाँ पे भी प्लस होगा according to the previous slide. ठीक है? Now let's move forward. Now let's discuss the types of differential equation and their definitions. There are two major categories of differential equations. Two major categories. Okay. First of all, we have differential equations. Okay. DEs, differential equations. We have then two major branches of differential equations: ODEs, okay, and PDEs. Now, what is ODE and what is PDE? ODE is ordinary differential equation and PDE is partial differential equation. Okay. Partial differential equations are not within the scope of this course. We shall only discuss ODEs in this course. Okay. But for your information, I shall give you the definition of both kind of differential equations so that you can easily differentiate sorry, between ODEs and PDEs. These ODEs and PDEs are further classified by with respect to some of their properties. We'll discuss them later on. Now look at the definition one. An equation, again, before discussing the definition, you should know the difference between ordinary derivative and partial derivative. Okay. If someone do not know what is ordinary or what is partial derivative, you can ask me. I hope you know what is ordinary differential equation, ordinary derivative, and what is partial derivative. Is there anyone who doesn't know ordinary derivative क्या होता है और partial derivative क्या होता है? Anyone? Everyone know it? चलें, even then मैं थोड़ा सा explain कर देता हूँ. ठीक है. Let me find some appropriate slide for this. No, कोई खाली slide नहीं. चले हम यहीं पे देखते हैं. ऑर्डिनरी देखें, फंक्शंस जो हैं, अगर आपके पास एक टू डायमेंशनल फंक्शन है y इज इक्वल टू f of x, ठीक है. जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है. जब इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो बेसिकली डेरिवेटिव जो है वो क्या है, अगर कोई भी फंक्शन है यहाँ पे तो क्या होगा, एक टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी, ठीक है, सिंगल लाइन होगी और सिंगल स्लोप होगी. तो इस किस्म के फंक्शन के जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो दैट इज बेसिकली सिंपली द dy by dx, ठीक है. And this is actually the ordinary derivative of any function, which involves only single independent variable. But if you have several variables, for example, z is equal to f of x, y. Now you have two independent variables, means more than one independent variables. Okay. Now the rate of change or the derivative you would see here in this function, it should be with respect to y as well as with respect to x and y both. So जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो we cannot write dz by dx, we cannot write it. We write it in the form of a partial derivative. Partial, देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो आप जो रेट ऑफ चेंज है वो x के लिहाज से भी देखेंगे और y के लिहाज से भी देखेंगे, ठीक है. If you have a three-dimensional, for example, this kind of function, तो इसमें आप x के लिहाज से भी और y के लिहाज से भी आप डेरिवेटिव चेंज देखेंगे, ठीक है. तो ये चेंज जो होगी ये पार्शियल चेंज होगी, ठीक है. अल्टीमेट चेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट
अगर आपने इस फंक्शन में सिर्फ x के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इस डेरिवेटिव को हम पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे और इसको इस तरह डिनोट करेंगे पार्शियल z बाय पार्शियल x, ठीक है। और अगर इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो पार्शियल z और पार्शियल y होगा, ठीक है। सो पार्शियल डेरिवेटिव्स आर डिनोटेड बाय दिस साइन व्हिच इज पार्शियल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ पार्शियल डेरिवेटिव, ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव। ऑर्डिनेट डेरिवेटिव्स की जो डेफिनेशन होती है या इसको जो नोटेशन होती है वो dy by dx है। नाउ लेट्स दिस वाज द ब्रीफ explanation of partial and ordinary derivative. Now let's discuss the definition of the differential equations. First definition जो है, this is basically the formal definition of a differential equation. First definition, an equation containing the derivatives, यहाँ पे आप देखें derivatives है, derivatives of one or more dependent variable, one or more dependent variables with respect to one or more independent variables. One or more independent variables. Remember this. One or more independent and one or more dependent. दोनों जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है। मसलन अगर आपके पास u जो है वो u ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, और v जो है वो v ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है, तो an equation of this kind partial u by partial x, let me raise this thing, partial u by partial x plus partial v by partial y, ठीक है। अब इसमें देखें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। इसमें देखें यू कैन नोटिस दैट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, दो डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये एक हो गया, ये दो हो गए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वाला दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो an equation, a differential equation can have more derivatives with respect to one or more independent variable of one or more dependent variables, okay. So this is basically the general definition of a differential equation. Now there are two major kinds of differential equations, which the first one is ordinary differential equation and the second one is partial differential equation. Now the second definition is basically of the ordinary differential equation, which is denoted by ODE, okay. अगर किसी इक्वेशन में if a differential equation involves the derivatives of only one independent variable, okay. Dependent variable can be more than one, but if a differential equation involves derivatives with respect to only one variable, then it is called ordinary differential equation, क्योंकि इसमें ordinary derivatives involved होंगे। dy by dx, for example, dy by dx is equal to plus minus 6xy is equal to 0, ये एक ODE है, ये भी ODE है, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो ये वेरिएबल होगा, यहाँ पे जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे इट डजंट मैटर कि क्या है, अगर x है तो x डिपेंडेंट वेरिएबल है, नीचे t है तो t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे x डिपेंडेंट है। रिमेंबर दिस, जो भी इक्वेशन में यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व होगा वो डिपेंडेंट होगा, और जो यहाँ पे नीचे है डिनोमिनेटर में ये इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो यू कैन सी दैट ऑल दीज इक्वेशंस आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मोर देन वन, then that differential equation is called ordinary differential equation. If you have any confusion, you can ask me any question. So you don't have any confusion, let's go and discuss the definition of partial differential equation now. This is the definition 3, an equation involving partial derivatives of one or more dependent variables with respect to two or more independent variables. अब इसमें one or more नहीं है, two or more है। इसमें one हो जाएगा अगर
तो वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होगा उसमें, उस इक्वेशन में, तो उसको हम फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव कब बनेगा? जब आप दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो मिनिमम 2 होने चाहिए, एटलीस्ट 2 या उससे ज्यादा होंगे, देन we can introduce or we can involve partial derivatives of those dependent variables. Then the differential equation which we will obtain will be the partial differential equation. These are the examples of partial differential equation. For example, here u is a dependent variable and x और y जो है ये दो independent variable हैं, ठीक है। u एक ही है, ठीक है, यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है। सॉरी, u यहाँ पे किस चीज का फंक्शन होगा? ये जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन्हीं का फंक्शन होगा। u जो है वो बेसिकली x y का फंक्शन होगा, जो पे यहाँ पे x y गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, u आपके पास u और u सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? x और t। मींस यहाँ पे जो u है वो किसका फंक्शन है? u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, नॉट y। इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि x y ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करें, x और t भी हो, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है। अच्छा, तीसरी इक्वेशन में अगर आप देखें यहाँ पे, तो दो, एक u है एक v है, दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? They are also 2, so this is partial differential equation, whereas u must be the function of both variables x y, and v must also be a function of both independent variable x y. So these are some examples of partial differential equations. I hope you can now differentiate between ordinary and partial differential equations. If you have any question, you are most welcome. Any question? No? Now, differential equations are denoted by using different notations. For example, on this slide, I have given you different kinds of notations of differential equation, which you can see in the books. ठीक है। So ordinary derivatives जो हैं उनको different notation से denote करते हैं। Similarly, differential equations में जो ordinary derivatives हैं उनको differently हम denote करेंगे, तो उसकी notation change हो गई। मतलब यहाँ पे ये equation है पहली वाली, इसमें simple dy by dx, d square y by dx square minus sin x dy by dx plus 16y is equal to 0। ये एक differential equation है। इसको हम इस notation से भी denote कर सकते हैं, means d square y by dx square लिख दें, d square y by dx square को y double dash भी लिख सकते हैं, ठीक है, और dy by dx को y dash भी लिख सकते हैं। So this is another notation of presenting differential equation. Another notation you may see in the books is d square y. D square here stands for what? D square y stands for d square y by dx square, and dy stands for what? dy by dx। तो ये इस तरह की नोटेशन भी हो सकती है। फिजिक्स में आपने देखा होगा कि x डबल डॉट यूज किया जाता है। x डबल डॉट स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट्स d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, और डॉट जो होता है वो यूजुअली टाइम डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं फिजिक्स में। आपने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की इक्वेशंस देखी होंगी, उनको यूजुअली x डॉट या s डॉट से डिनोट करते हैं। So these are different notations of ordinary derivatives and ordinary differential equations. Similarly, we can represent partial differential equations by using different notations. This one. Now, what does it mean? Partial derivative of u with respect to x and x means 2 times x. Okay. So ये u x जो है, this is equivalent to partial square u by partial x square,
और अगर हम यू एक्स सिर्फ लिखें तो ये क्या होगा, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। इन एडिशन अगर मैं लिखता हूं यू एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या होगा, partial square u by partial x partial y. It is also possible कि आप u का पहले डेरिवेटिव लें with respect to y and then डेरिवेटिव लें with respect to x, ठीक है। चेंज इन y पहले आप with respect to y देखें और फिर चेंज इन u with respect to x देखें, तो दो दफा चेंज होगी तो ये भी सेकंड डेरिवेटिव होगा, पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। So remember this notation as well. Uxy means this thing. यहाँ पे अगर x के दो डेरिवेटिव हैं तो uxx, अगर t के डेरिवेटिव दो डेरिवेटिव हैं तो utt, ठीक है, एक डेरिवेटिव है तो ut, इसी तरह एक डेरिवेटिव है तो uy लिखेंगे, vx लिखेंगे, ठीक है। So these are different notations of partial differential equations as well. If you have any question, you can ask me. Now, we can classify differential equations usually by following three of their properties, or you can say three classification, kind of. First, we can classify differential equations with respect to their order. We can classify differential equations either they are ordinary or PDEs. दोनों के लिए यही classification होगी with respect to order, with respect to degree, and with respect to linearity, ठीक है। So order, degree and linearity ये तीन चीजें हैं जिससे हम differential equation को classify कर सकते हैं। First of all, what is the order of a differential equation? सबसे पहले हमने ये देखना है। So order of a differential equation is what? The order of a differential equation, either it is ODE or PDE, it doesn't change anything, is the order of the highest order derivative. Highest order derivative in that equation, that will be called the order of a derivative. अब इसमें देखें जो example है नीचे, can anyone tell me what is the order of this differential equation? Anyone? No one? सर 5 होगा। ये कौन बोल रहा है? करीब। Areeb. Somebody is writing in the chat window as well. शहरियार कह रहे हैं जी 2, हमजा कह रहे हैं 2, क्यों अदीम, अरीब? बाकी सारे 2 कह रहे हैं, आप 5 क्यों कह रहे हैं? सर हाईएस्ट पावर 5 है dx और dt की, इसलिए बोल रहा था। डेफिनेशन नजर आ रही है आपको? पढ़ें Yes, डेफिनेशन, पढ़ें इसको, रीड इट लाउड एंड क्लियर। The order of a differential equation, either ODE or PDE, is the order of the highest derivative in the equation. So what is the highest derivative in that equation? ठीक है सर, वो d square over dt square. So d square x over dt square. yes, thank you. So highest order derivative, not the power of derivative. This is the difference. There is a difference between these two things. ठीक है? dx by dt whole power 5 है. Whole power 5. It's a power of first derivative of x with respect to t. ठीक है? But what is the highest order derivative is, it is the 2, क्योंकि d square x by dt square है. So I hope you got it now. ठीक है अरीब? Yes sir, thank you. Okay. Now, in the second equation, what is the highest order derivative involved in the second equation? It is the first derivative. So its order is 1. Its order is 2. ठीक है? अब अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं इस इक्वेशन को थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल d square x by dt square whole power 3 plus d यहाँ पे 4 करना, फॉर एग्जांपल, so d यहाँ पे आप 3 करना, d cube x by dt cube plus 7 equal to 0, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा?
यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? सर 3 होगा। 3 होगा, ठीक है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव involved in the differential equation, it decides about the order of a differential equation. I hope you got it. Next is the degree of a differential equation. Now, degree of a differential equation is the highest power of any derivative in the differential equation. ठीक है, highest power of any derivative. यहाँ पे अब डिग्री क्या होगा? यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव की डिग्री की पावर क्या है? 1. इस डेरिवेटिव की पावर क्या है? 5. तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी डेरिवेटिव इज व्हाट? इट इज 5. तो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी. सो डिग्री इन्वॉल्व्स बेसिकली पावर ऑफ द डेरिवेटिव्स एंड ऑर्डर इन्वॉल्व्स ऑर्डर ऑफ अ डेरिवेटिव. ठीक है, ये आपके पास सेकंड डेफिनेशन आ गई. About the degree of a differential equation. The degree of a differential equation, either it is ODE or PD, it doesn't matter, is the power of the highest derivative in the equation. Highest order derivative पहली इक्वेशन में क्या है? d square x by dt square, ये वाला है, सॉरी, हाँ, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. इसकी पावर क्या है? 1. तो डिग्री क्या हो जाएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की? 1. ये 5 डिग्री नहीं होगी. ठीक है. So according to the definition of differential equation, degree of a differential is the power of the highest order derivative, highest derivative in the equation. यहाँ पे डिग्री क्या होगी? 3, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी. यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 2. इसकी पावर 3 है तो डिग्री 3 होगी. ये वाला हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है. ठीक है, तो इसकी डिग्री 5 नहीं होगी इस इक्वेशन की, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, उसकी पावर 3 है तो डिग्री 3 होगी. दिस इज व्हाट, this is how we can classify differential equation with respect to degree. If you have any question, you can ask me. Next is linearity of a differential equation, whether a given differential equation is linear or non-linear. ठीक है, आपको पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अभी हमने लीनियर सिस्टम्स पढ़े ना. ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें आपके पास जो x, जो अननोन वेरिएबल्स हैं लीनियर सिस्टम में, अननोन वेरिएबल x1 x2 so on xn, उन सारों की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. ठीक है, यही लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी उसी तरह का क्राइटेरिया है, बट इट्स अ बिट डिफरेंट. नाउ जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें किसी भी टर्म में हम देखते हैं, इन एनी टर्म, ये एक टर्म है, फर्स्ट टर्म, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? इस पहली टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y की पावर क्या है? 1. यहाँ पे 1 है. दूसरी टर्म आपके पास है ये वाली. ठीक है, इसमें y की पावर क्या है? y की पावर ये 5 है. ठीक है, 1 नहीं है ये. ठीक है, तीसरी टर्म में पावर क्या है? 1 है y की. सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर देखेंगे, पहला जो क्राइटेरिया हम देखते हैं. अगर किसी भी टर्म में y की पावर 1 से ज्यादा है किसी भी टर्म में, तो वो नॉन लीनियर होगी. ठीक है, ये इक्वेशन क्यों नॉन लीनियर है? क्योंकि इसमें ये एक टर्म है, इसमें पूरी टर्म में y की पावर 1 से ज्यादा है. 1 से ज्यादा है तो ये नॉन लीनियर है सिंपली. ठीक है, whereas इन सेकंड इक्वेशन अगर आप देखें, पहली टर्म में y की मैक्सिमम पावर क्या है? 1. ठीक है, यहाँ पे 1 है. दूसरी टर्म में y की पावर क्या है? 1. तीसरी टर्म में, पूरी टर्म में y की पावर क्या है? 1. ठीक है, तो इस टर्म में y है ही नहीं, सो इट कैन बी y पावर 0.
So we can say that a differential equation is linear अगर हर टर्म में at most y की पावर क्या हो, 1 हो, at most 1 हो या 0 हो, ठीक है। at most आप 1 नहीं कहेंगे, या 1 हो या 0 हो, ठीक है। तो यही दो पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि y की पावर 1/2 है, तो वो भी लीनियर नहीं होगी, ठीक है। मसलन ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, x की पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। इन टोटल इस पूरी टर्म में x की पावर कितनी होगी, इन टोटल 2 होगी, ठीक है। इसमें x पावर 1 और dx 1/dt, तो x की पावर 1 प्लस x की पावर जो है वो आपके पास 1 + 1 विच इज 2। तो इस टर्म में आपके पास x की पावर 1 नहीं है, तो ये लीनियर हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी, ठीक है। वेयर एज तीसरी टर्म में आप देखें, यहाँ पे भी x की पावर 1 नहीं है, इट इज 1/2। ये वाली टर्म भी इस इक्वेशन को नॉन लीनियर बना देगी। अच्छा, चौथी एग्जांपल में आप देखें, y की पावर इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर क्या है, यहाँ पे कोसाइन ऑफ y है, और कोसाइन ऑफ y जो है एक नॉन लीनियर फंक्शन है, ठीक है। ये लीनियर फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि कोसाइन का जो ग्राफ है वो ये है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ लीनियर तो नहीं है ना, ठीक है। सो कोसाइन एक नॉन लीनियर फंक्शन है और ये y का फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि कोसाइन ऑफ y की अगर आप सीरीज देखें तो ये आती है जिसमें y की मोर देन 1 पावर्स इन्वॉल्व होती है, तो ये फंक्शन जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर बना देगा। सो ये चार एग्जांपल्स जो हैं, इनमें चारों टाइप्स के जो है वो नॉन लीनियरिटी इन्वॉल्व है। पहली इक्वेशन में क्या है कि y की पावर जो है वो मोर देन 1 है यहाँ पे। दूसरी इक्वेशन लीनियर है। तीसरी नॉन लीनियर क्यों है, एक तो ये है कि x के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी टर्म में, और रेडिकल फंक्शंस नहीं होने चाहिए, कोई भी ट्रांसडेंटल फंक्शन डिपेंडिंग ऑन एज ए फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। ट्रांसडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये ट्रांसडेंटल फंक्शंस इनको हम कहते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में अगर डिपेंडेंट वेरिएबल में आपके पास ट्रांसडेंटल फंक्शन आ रहा है तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सो only this one is a linear differential equation, all others are non-linear differential equation, ठीक है। तो हम किसी भी इक्वेशन में कौन सी चीजें देखते हैं in order to decide whether a given differential equation is linear or not, ये आपको आप बुक में भी पढ़ लीजिएगा। ये चारों जो प्रॉपर्टीज जो हमने देखनी है वो बुक में भी लिखी हुई हैं और मैंने आपको वर्बली बता भी दी है। नॉन लीनियरिटी में चार चीजें देखते हैं। पहले नंबर पे क्या देखेंगे, y की पावर 1 होनी चाहिए हर टर्म में, ठीक है। और अगर कोई एक टर्म है जिसमें y नहीं है तो इट डजंट मैटर, y की पावर 0 भी हो सकती है, आइदर 1 और 0, नॉट मोर देन दैट, देन दैट इक्वेशन इज लीनियर, ठीक है। हर टर्म में पावर 1 होनी चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल की, नॉट ओनली y। अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y की पावर 1, अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो x की पावर 1 देखें। दूसरी बात क्या है कि आपके पास प्रोडक्ट्स में नहीं आना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड और इट्स डेरिवेटिव्स आप इसको यूं कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स ऑफ
dependent variable and its derivatives do not appear or do not arrive in differential equation. तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसकी पावर को ये 1 से ज्यादा कर देंगे। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस जो हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस of y should not be in the differential equation, should not be present, कह दें, should not be present, या जैसे भी आप कह रहे हैं। ये क्या है? ट्रांसडेंटल फंक्शन, ये भी एक ट्रांसडेंटल फंक्शन है। कौन सा वाला? रेडिकल, ये, ठीक है। सो इट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ट्रांसडेंटल फंक्शन है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये अगर आप तीन चीजें देख लें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, then you can decide whether a given differential equation is ordinary or is linear or non-linear. If you have any question, you can ask me. Sir, can you explain part 2 again, जो second वाला था? सेकंड वाले में क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। प्रोडक्ट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है, should not be involved या should not be present, should not be involved in differential equation. What does it mean? देखिए प्रोडक्ट्स कैसे हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 16y स्क्वायर कर दूं, what does it mean? यहाँ पे आपके पास y into y है, ठीक है। यहाँ पे इन टोटल y की डिग्री क्या हो जाएगी? 1, और यहाँ पे भी 1, ये दोनों को प्लस करेंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी? 2। तो यहाँ पे y की पावर 1 नहीं रही। सिमिलरली कोई भी पावर हो सकती है, इसकी पावर मोर देन अगर 1 है तो वो नॉन लीनियर फंक्शन है। ये नॉन लीनियर फंक्शन क्यों है? अगर आप y स्क्वायर का ग्राफ देखें या तो y स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? ये पैराबोलिक होगा ना, ये लीनियर तो नहीं होगा। तो y स्क्वायर आपके पास एक नॉन लीनियर फंक्शन है, तो हाउ कैन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बी लीनियर? ठीक है, तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 से ज्यादा हो, वो नॉन लीनियर टर्म उसको हम कहेंगे। तो नॉन लीनियर टर्म जो है दैट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल या इसका डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रोडक्ट आ गए। या आपके पास यू भी हो सकता है y स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें इन टोटल अगर आप देखें तो y की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, टोटल डिग्री क्या हो जाएगी? 3। तो ये भी एक नॉन लीनियर टर्म होगी। जैसे कि यहाँ पे है, ये वाली आप देखें, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है x, जो कि dx by dt के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। So these kind of terms should not be present in the differential equation, ठीक है। अगर ये होती हैं तो नॉन लीनियर हो जाएगी इक्वेशन, अगर नहीं है तो लीनियर। So these तीन चीजें हैं, 3 things which you need to check in the differential equation to decide whether the given differential equation is linear or non-linear. Okay. Any question? Any further confusion? No sir, thank you. Okay, then let's move forward. यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एनओडी क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब हम आगे जितनी भी बात करेंगे वो सारी की सारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ दिस कोर्स। सिर्फ हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, जनरल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखें, ये पहली इक्वेशन है, इसमें
कौन कौन से डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं? सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल ये है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है? x है, ठीक है, x यहां से ये वाला फंक्शन जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, sin x। सो इन जनरल ये पूरी इक्वेशन जो है ये कौन कौन से वेरिएबल्स का फंक्शन है हम ये देखेंगे, इसलिए हमने इसको लिखा कैपिटल F फंक्शन ऑफ x which is independent variable, y which is dependent variable, y dash first derivative and y double dash second derivative. So this whole equation is basically a function of x, y, y dash, y double dash, ठीक है। तो ये आपके पास उसकी जनरल नोटेशन आ गई इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिनोट डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल में आप देखें, यहाँ पे सिर्फ इसमें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर और वाई इन्वॉल्व है। इट इज नॉट नेसेसरी कि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव लाजमी होना चाहिए। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हमने देखना है कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 2 है। सो एज ए होल दिस इक्वेशन should be written in this form, f of independent variable, then dependent variable and its highest order derivative। यहाँ पे उससे जो पिछला डेरिवेटिव है वो भी लिख दें आप, ठीक है, even if it is not present in the given differential equation, ठीक है। So we have to be consistent in the notation, ठीक है। सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखें, सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखें, फिर डिपेंडेंट, फिर उसका आगे चलते जाएं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड देन स्टॉप एट द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन दैट इक्वेशन, ठीक है। सो दिस notation will tell us that this differential equation is of second order, its dependent variable is y, its independent variable is t, okay, but this notation doesn't tell us whether the given differential equation is linear or not non-linear। उसके लिए आगे जाके हम मजीद एक डिफरेंट नोटेशन जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, but this is the most general, these are the most general notations of any given differential equation, ठीक है। अब तीसरी एग्जांपल में आप अगर देखें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x, डिपेंडेंट y है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 1 dy by dx। So as a whole this differential equation can be written f of x y y dash, ठीक है। Similarly अगर इसको देखें तो f of x y y dash y double dash and y triple dash, ठीक है। So this is the general notation of any ordinary differential equation, and in general अगर आप किसी भी differential equation में nth order derivative involved है, nth order, ठीक है, so how do we denote it? f of x y y dash y double dash so on, nth derivative equal to 0। This is basically the general notation of any given ordinary differential equation, ordinary differential equation। Next is, हाँ, ये तो हमने ये पहली जनरल नोटेशन ये देखी, ठीक है, ये वाली जिसमें हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे फंक्शन के अंदर लिखते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक और नोटेशन इसकी ये भी हो सकती है जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे है कि आप इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको सेपरेट कर लें, ठीक है, सॉरी ये वाली, हाँ, आप इसको, there is another general form of notation of an ordinary differential equation is that किसी भी differential equation में जो highest order derivative है उसको separate कर लें, ये आप separate कर लें, और जो remaining function है, ठीक है, जो remaining function है आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है। अब इसको देखें जो encircle है रेड कलर में,
इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो ये रेड वाला जो है ये फंक्शन होगा f of x y y dash. So this is how we can also denote a differential equation. Okay. So similarly, this one, we can separate the highest order derivative. मसलन ये वाली है, इसमें आप कैसे सेपरेट करेंगे? आप dy by dx equal to -16y square divided by sin x. sin x को आप इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको आप दूसरी तरफ जाके यहाँ पे डिवाइड कर दें, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव सेपरेट हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? f of x y, क्योंकि इसमें कोई भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, तो सिर्फ हम इसको सॉरी व्हाट्स दिस नो, हाँ, तो इसको हम इस पूरे फंक्शन को f of x y कहेंगे। यहाँ पे आपके पास dy by dx r। इन जनरल अगर आपके पास nth ऑर्डर ODE है तो उसमें nth डेरिवेटिव को सेपरेट कर लेंगे, बाकी तमाम कहाँ तक आएगा? n-1th डेरिवेटिव, ठीक है। n-1 मींस यहाँ पे पूरी इक्वेशन में अगर दो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इधर आ जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग होगा उसमें यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से एक कम n-1, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ये उससे एक कम वाला डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा इस फंक्शन में। सो दिस इज हाउ वी कैन डिनोट इन another way the general form of differential equations. If you have any question, you can ask me. Now, next is general form of a linear ordinary differential equation. If you have any question, you can ask me. Yes. Sir, if the highest order derivative is 5 and the second highest is 3, then no problem. We will write it in a similar manner. यहाँ पे आपके पास highest आएगा और यहाँ पे second highest. It doesn't matter कि आपके पास यहाँ पे जैसे देखें इस इक्वेशन में ये जो एग्जांपल है इसमें थर्ड डेरिवेटिव है और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव तो है ही नहीं, इसमें सेकंड डेरिवेटिव इसमें नहीं है ना। इवन देन वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे उससे एक कम, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिनोट इट। So sir, we will write 4 or 3? We will write 4. अगर आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 5 है और उसमें 4 इन्वॉल्व ही नहीं है, 3 है, तो आप इवन देन 4 तक लिखेंगे, क्योंकि इससे जनरल नोटेशन, हमें नहीं पता उसमें कौन कौन सा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है या नहीं है, हम तो जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं ना, हम किसी एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस नहीं कर रहे, हम सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज बेसिकली a particular example of a differential equation of degree of order 3. This is a particular example of order 3 differential equation. हम क्या कर रहे हैं, हम सारी की सारी order 3 differential equation की notation को discuss कर रहे हैं। So in general order 3 की differential equation को हम इस तरह denote करेंगे, ठीक है। इसमें आप इसको यूं भी कह सकते हो कि इसमें जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको कोफिशिएंट 0 है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं dx e raised by x d cube y by dx cube plus 0 d square y by dx square minus sin x और dy by dx whole power 2 and plus so on। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 0 है, इट डजंट मीन कि वो फंक्शन नहीं है इसमें सेकंड डेरिवेटिव। आई होप यू गेट इट, ठीक है। Let's have a break of maybe 5 minutes and then we'll regroup here at what time is it? It is 11:11. We'll come back at 11:20. Now
what is the general form of a linear ODE? Previously, we have discussed general form of a ODE. Okay, there are two different notations to represent ordinary differential equations. Now, this is the only form of general form of linear ODE, linear differential equation. It doesn't contain or involve non-linearity or non-linear differential equation. So general form of a linear differential equation is what? It may involve n derivatives. Okay, first derivative is, for example, first term is, it involves highest order derivative, second highest, then so on, second derivative, first derivative, and without derivative term. And here you have another term which is not a function of x, so not a function of y, it is only function of x. Okay, so on the right hand side we have only a function of x, and along with these derivatives we have functions of x. Okay, so these could be any function of x. Okay, यहाँ पे भी function of x, यहाँ पे भी function of x. So you have to remember this form. Okay, derivatives हैं y के, second derivative, third, fourth, first derivative, without derivative. So on the left hand side we have only derivatives in the dependent variable, and their coefficients may be any function of independent variable x. ठीक है, अगर independent variable t है, so then these functions should be the function of t. ठीक है, so it depends what is the independent variable. Right hand side पे भी आपके पास सिर्फ function independent variable का है. ठीक है, so particular cases of these two, अगर आप n को 1 रखें और 2 रखें, n को 1 रखेंगे तो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? 1. यहाँ पे विदाउट डेरिवेटिव और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सिर्फ फंक्शन ऑफ x. And the other thing which we need to notice is that these derivatives have coefficients which are functions of independent variable only. ठीक है, और राइट हैंड साइड पे भी आपके पास सिर्फ फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का. So this is first order linear ODE. How we call it? First order, because its order is 1 and it is linear, so we call it linear first order ordinary differential equation. And in the second example, this one, you can notice that we have derivative, second derivative, and then first derivative, and without derivative. Okay, and then their coefficients are only function of x, and the right hand side is the function of independent variable, which is x here. Okay, so you should remember here that the coefficients of the derivatives, all coefficients a k, depend only on the independent variable. Okay, you have to notice this. Okay, और सारे डेरिवेटिव्स जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हैं उन सब की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1, फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए. So you can also say that this is a linear first order ODE of degree 1. डिग्री 1 हम क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि हमने लीनियर कह दिया है, तो डिग्री 1 कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लीनियर जो है उसकी डिग्री हमेशा डेरिवेटिव्स की 1 होगी, तभी हम उनको लीनियर कहेंगे. सो दिस इज आल्सो a linear second order ordinary differential equation of degree 1. अब लीनियर कह दिया है तो डिग्री 1 कहने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, तो लीनियर इज सफिशिएंट. सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर nth order. This is the general form of linear nth order ordinary differential equation. Okay. One more thing which we need to discuss here, that अगर आपके पास जो राइट हैंड साइड है ये वाली g of x, अगर ये 0 नहीं है,
अगर ये 0 नहीं है g of x, then this differential is also called non-homogeneous linear ODE of linear nth order ODE. ठीक है, अगर आपके पास राइट हैंड साइड इसकी 0 है, इक्वल टू 0 है, यहाँ पे अगर आपके पास राइट हैंड साइड में 0 है, ये फंक्शन नहीं है, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर nth ऑर्डर ODE. ठीक है, आप इसको लिनियरिटी से भी क्लासिफाई करेंगे, लिनियरिटी को भी मेंशन करेंगे, ठीक है, होमोजीनियस को भी मेंशन करेंगे, ऑर्डर को भी मेंशन करेंगे, एंड देन you will tell that this is an ODE, ordinary differential equation. So the complete name of this differential equation with equal to 0 is what? Homogeneous linear nth order ODE. ठीक है, so this is how we denote it and we call it. If you have any question, you can ask me. Here are some particular examples of linear non-homogeneous ordinary differential equations. Now this is an example of what we call it, linear first order non-homogeneous ODE. ठीक है, so this is the complete name of this differential equation. Now in the second example, this one, ये क्या है? This is linear homogeneous or homogeneous second order ODE. This is the complete name of this differential equation. Similarly, what is this? This is linear non-homogeneous third order ODE. ठीक है, this one. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. सर जो फर्स्ट वाली है उसमें जो हमारे पास x की पावर 2 है इसमें, तो ये मतलब नॉन लीनियर हो गई। बड़ा था, पावर्स तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, पावर Yes, क्या sir. होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यस सर। किसकी होनी चाहिए 1 पावर? सर उसकी x की नहीं होनी चाहिए थी। मैंने किसका कहा था? याद करें। डिफरेंशियल की, डेरिवेटिव की, डिपेंडेंट वेरिएबल की। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर देखनी है, इंडिपेंडेंट की नहीं देखनी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि दिस शुड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसको हमने a1 ऑफ एक्स कहा था, और ये जो है आपके पास दिस इज व्हाट a नॉट ऑफ एक्स। अब ये a नॉट ऑफ एक्स है, ये कुछ कोई भी फंक्शन हो सकता है, इट डजंट मैटर, इट कुड बी sin x, इट कुड बी sin 5x, इट कुड बी e raised power x into sin 5x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं देखेंगे हम, लीनियर डिसाइड करने के लिए कि वेदर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, हम सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को देखेंगे। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर y की 1 है, यहाँ पे भी 1 है दोनों तरफ 1, तो ये लीनियर है। इंडिपेंडेंट को नहीं देखेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कोएफिशिएंट्स में आते हैं, दे कुड बी एनी काइंड ऑफ फंक्शंस, ठीक है, क्लियर। देखें नीचे जो यहाँ पे एग्जांपल है, यस सर, थैंक यू। इसमें देखें यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके प्रोडक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, तो ये लीनियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे sin y आ रहा है, sin y लीनियर फंक्शन नहीं है ना, तो ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन होगी।
यहाँ पे y की पावर 2 आ रही है, ये भी क्या होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो यू हैव टू you should be able to differentiate between linear and non-linear ordinary differential equations. ठीक है, I hope with the help of these examples you can clarify your concept. Let's move forward. First order ODE notation, general form. पहले हमने nth ऑर्डर लिखी थी, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होगी, वो इस टाइप की होगी। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट 1। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है, फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस, ये नॉन होमोजीनियस है, तो इट इज बेसिकली लीनियर नॉन होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर ODE। ठीक है, दिस इज अच्छा, इसको फर्स्ट ऑर्डर ODE को हम डिफरेंट नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है जो जनरल फॉर्म है, जो अभी हमने, जिसको मैंने सर्कल किया है रेड कलर में। ठीक है, इसमें हम मजीद सिंप्लीफिकेशंस कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें, कोफिशिएंट फंक्शन को अगर आप डिवाइड कर दें थ्रू आउट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। आपके पास a1 डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी हो गया। अब ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ x ही रहेगा, a नॉट ऑफ x ऊपर भी फंक्शन ऑफ x है, नीचे a1 ऑफ x ये भी फंक्शन ऑफ x है। इस कोशेंट को हमने एक नया नाम दे दिया p of x, where p of x is what, p of x is a function of x which is particularly a naught of x divided by a1 of x, but it is still a function of x only। हमने y को नहीं छेड़ा, y वहीं पे है। और राइट हैंड साइड फंक्शन भी इसी तरह, आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में भी g of x है, फंक्शन ऑफ x, नीचे a1 of x, ये भी डिनोमिनेटर में भी फंक्शन ऑफ x है। हमने इसको नया फंक्शन कह दिया q of x, where q of x is what, q of x is a function of x divided by a function of x। ठीक है, so this is another kind of notation of first order ODE, first order linear non homogeneous ODE, ये फॉर्म भी है। ठीक है, अच्छा, इसकी एक और फॉर्म भी है, ये वाली फॉर्म, इस तरह भी हम फर्स्ट ऑर्डर को लिख सकते हैं। देखें, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को इस तरह सेपरेट करें कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx है, इज इक्वल टू व्हाट, g of x minus a naught of x into y divided by a1 of x। ठीक है, अब इन जनरल जो न्यूमरेटर है, ये फंक्शन ऑफ x भी है और फंक्शन ऑफ y भी है, क्योंकि इसमें y भी है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। we are going to discuss, we are going to give it a general form। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि dy by dx जो है वो इन जनरल it can be written as m of xy divided by n of xy। ठीक है, फिर आप क्या करें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें एंड you can get this kind of differential equation। ठीक है, जिसमें आपके पास यहाँ पे x dx का कोफिशिएंट could be x function of xy, dy का कोफिशिएंट could be a function of xy। so this is another form of representing first order ordinary differential equation। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी थी, ये फॉर्म भी आप इसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। in fact this whole thing is what, this whole thing is function of x and y, so this can be written further in this form, d of x dy by dx is equal to function of x y। ठीक है, in general, so this is another form of first order ODE। इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि ये एग्जांपल है। ठीक है, ये इस तरह भी। ठीक है, फंक्शन dx का कोफिशिएंट xy का फंक्शन है, यहाँ पे dy का कोफिशिएंट जो है वो xy का फंक्शन है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों फर्स्ट ऑर्डर है, अगर हम इसको देखें राइट साइड पे ले जाएं, ये वाली टर्म राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x sin y plus y
cos x dy equal to x square plus y square times dx with the negative sign. अब ये कोफिशिएंट जो है आप इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो यू गेट व्हाट dy by d, और dx को आप dx को आप दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो यू गेट dy by dx is equal to what negative x square plus y square whole divided by x sine of y plus y cos of x. So ये आपके पास function of x y r. So this is again the first order differential equation. Similarly, we can handle this. If you have any question, you can ask me. So these are different forms of the first order ODEs. Now, solution of these क्या है? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. Any function defined on some open interval, या किसी भी इंटरवल पे आप एक फंक्शन जो डिफाइन है, ठीक है, वो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन. वेरिफिकेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं. मसलन आपके पास हम देखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक फंक्शन है. कैसे प्रूव करेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है? ठीक है, आप इसको, इस फंक्शन को इस इक्वेशन में इंसर्ट कर दें. इंसर्ट करने के लिए व्हाट डू यू नीड हियर? यू नीड टू फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है, यू नीड फर्स्ट डेरिवेटिव. तो आप इसका एक डेरिवेटिव फाइंड करें. ठीक है, इसका एक डेरिवेटिव क्या आ रहा है? dy by dx इज व्हाट 4, नीचे आ जाएगा यहाँ पे 4 into x क्यूब. ये 4 और ये कैंसिल हो गया, वी गेट दिस थिंग. ये फर्स्ट डेरिवेटिव है. ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव को आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पुट कर दें और y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर दें. सो आप राइट हैंड साइड को देखें, ये क्या आ रहा है? x into y पावर 1/2. x एज इट रहेगा, y की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दी, पावर 1/2 लेंगे तो अब बस ये आ गया. इसको सिंप्लीफाई करें सारे को, यू गेट दिस थिंग विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड dy by dx. तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए. अगर कोई भी फंक्शन, any function, when we insert this function into differential equation, if it satisfies or it makes that equation, it turns that equation into identity. Means left hand side is equal to right hand side after inserting the function into differential equation. अगर हमारे पास left hand side और right hand side equal आ जाए, we say that this function is the solution of the given differential equation. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन जो है किस इंटरवल पे डिफाइन है. डिफाइन है मींस किस पे ये फाइनाइट रहता है, इनफिनिट नहीं होता. तो x पावर 4 है, ये पूरी रियल लाइन पे डिफाइन रहेगा. तो ये सॉल्यूशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका जो इंटरवल है वो क्या होगा? होल रियल लाइन. Similarly, you can verify that this function is solution of this differential equation. कैसे? आप इसके 2 डेरिवेटिव्स, एक डेरिवेटिव पहले लेंगे. ठीक है, एक डेरिवेटिव क्या आएगा? x as it ex का डेरिवेटिव ex प्लस ex as it x का डेरिवेटिव 1. ठीक है, ये आ जाएगा. सॉरी, ये आ जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव. फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें. सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ex e raised power x प्लस e raised power x प्लस e raised power x. तो आपके पास x e raised power x प्लस 2 e raised power x आ गया, which is x plus 2 times e raised power x. ये सेकंड डेरिवेटिव है. अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और y की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें. यू शुड गेट 0 is equal to 0, क्योंकि राइट हैंड साइड आपकी 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास 0 आनी चाहिए, सो दैट द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. अगर ये ट्रू हो जाती है, then we say that this is a function of the given differential equation. Otherwise, no. If you have any question, you can ask me. Further, we can also see that on what interval this function is defined. यहाँ पे x into e raised power x है, ये किसी भी x की वैल्यू पे undefined नहीं होता. It means ये पूरा function जो है x into e raised power x, it is valid
फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, या इसको सेट ऑफ आर भी कह सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ये दूसरी एग्जांपल को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन सी इट, आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, या उनके हम डिफरेंटली उसको हम डिनोट करते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है, अगर आप इसमें y इज इक्वल टू 0, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू 0, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू 0, अगर आप इसमें पुट करें 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, या आप इसको इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं, इट इज ऑब्वियस सॉल्यूशन। मतलब we don't have to put a lot of effort to find it. We just by looking at the differential equation we can say that y is equal to 0 is the solution of this differential equation, because it satisfies the given differential equation. It turns that equation into identity. So this is a solution, but it is very obvious, it is very simple, so we call it trivial solution. But we are not interested in the trivial solutions of the differential equation. We have to find non-trivial solutions of the given differential equation. So if it is a trivial solution, y is equal to 0, then y different from 0 will be called non-trivial solution. Okay, so I have mentioned it here. If you have any question, you can ask me. Next is explicit solution. Before discussing this solution, you should know what is an explicit function and what is an implicit function. I hope you know it. Explicit function क्या होता है और implicit function क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता तो you can ask me. Anyone? सर एक दफा रिवीजन करवा दें प्लीज। Explicit function is a function which can be written in this form: dependent variable and function of independent variable, ठीक है। आप यहाँ पे सेपरेट कर लें डिपेंडेंट वेरिएबल को और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। अगर किसी भी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, इन दिस फॉर्म, then this is called explicit function. And a function of this type, if it satisfies the given differential equation, that solution is called explicit solution. जैसे कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, हमने ये पहले प्रूफ किया हुआ है। सो दिस इज व्हाट दिस सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज y is equal to f of x, या आप इसको y is equal to phi of x की फॉर्म में लिख दें, ठीक है। तो we can explicitly define function y in terms of x. This is called explicit function, and if explicit function is a solution of the given differential equation, then this is called explicit solution of the given differential equation, ठीक है। Whereas अगर आपके पास कोई ऐसी differential equation है जिसका फंक्शन explicit फंक्शन नहीं है, ठीक है, उसमें हम x और y को सेपरेट ना कर सकें, तो उस टाइप का जो सोल्यूशन होगा उसको हम implicit solution कहेंगे, ठीक है। और implicit solution को इन जनरल हम इस तरह डिनोट करते हैं, यू कैन से इट f of x y इक्वल टू 0, या आप इसको कोई g of x y 0 कह दें, जिसमें हम x और y को सेपरेट ना कर सकें। So this kind of solution is called implicit solution, and this kind of function is called implicit function, ठीक है। इसकी एग्जांपल गिवन है कि ये जो रिलेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन इम्प्लिसिट सॉल्यूशन जो है वो हम पुट नहीं कर सकते डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे कि हम एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन को पुट करते हैं ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं। इम्प्लिसिट सॉल्यूशन को हम सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल है। हम क्या करते हैं,
अगर implicit solutions को हम यहाँ से start करें and we can get the differential equation, then it means that this function satisfies the given differential equation. Now in this case, the differential equation is this: dy by dx is equal to minus x by y. This is your ODE. And we are going to prove that this function, this implicit function, is a solution of this differential equation. हम क्या करेंगे? हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइड्स पे, ठीक है? x इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हमें इक्वेशन में पता है y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट. तो आप इसका डेरिवेटिव लें रिस्पेक्ट टू x, which is 2x plus 2y dy by dx इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, you get this one, which is the given ODE. It means that this function, this implicit function, satisfies the given ODE. It means that this is a solution of the given ODE. And this kind of solution is basically implicit solution. If you have any question, you can ask me. Example 2. अगर आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, अगर इसको हम इसके वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, मींस ये वाली टर्म जो है हम इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें और dx को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है? वेरिएबल्स यहाँ पे सेपरेट हो गए, यहाँ पे सिर्फ y है, यहाँ पे सिर्फ x है, और यहाँ पे dx भी आना चाहिए. इट्स अ टाइप ऑफ मिस्टेक, क्योंकि हमने dx को इस साइड पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे dx भी आना चाहिए. अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते हैं, राइट हैंड साइड पे रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं. आफ्टर दिस इंटीग्रेशन वी गेट दिस, ठीक है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट दिस थिंग. अब इसमें आप देखें कि ये क्या है, सॉल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. इस सॉल्यूशन को हम, कैन वी राइट दिस सॉल्यूशन y cube by 3 minus x cube by 3 equal to c, या आप कह सकते हैं minus c equal to 0, ठीक है? अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन है ये वाला, कैन वी सेपरेट x and y? No. This solution is basically of this form, g of x y is equal to 0. क्योंकि x और y सेपरेट नहीं हो सकते, तो ये आपके पास क्या है, implicit solution है of the given differential equation. If you have any question, you can ask me. No question? Let's move forward. Families of solutions. They are separate, but I told you that the explicit function is a function of this kind. y is equal to function of x. This is your explicit function. ठीक है, ये लिख नहीं रहा, let me. y is equal to f of x. ये explicit function है. Other than this, यहाँ पे y की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे y नहीं होना चाहिए. Can we write that particular solution? Can we write this solution in that form? Can we write this solution in this form? Who was asking this question? Arrays. Yes, sir. How can you write this solution in this form? Can you? So it cannot be written. It cannot be written. So the general form of this solution is what? It is g of x y equal to 0. So it is an implicit solution. Okay? Right, sir. Thank you. Okay. अच्छा, अब देखें, जब हम एक आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखें,
आपने, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमने फाइंड करना है एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या आपने g ऑफ एक्स y फंक्शन फाइंड करना है इक्वल टू 0। मींस यहां से आपने स्टार्ट करना है और ये फाइंड करना है, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यू हैव टू फाइंड फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, या ये वाला, ये किस टाइप के फंक्शंस हैं, ये सिंपल फंक्शंस हैं, इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपने इसमें से डेरिवेटिव को गायब करना है, डेरिवेटिव को एलिमिनेट करना है, तो देयर इज ओनली वन वे। डेरिवेटिव का रिवर्स क्या है? एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप अगर एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, ठीक है। There are different methods to eliminate this derivative, to finish this derivative from the equation. एक डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करने के लिए आपको उसको एक दफा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको दो डेरिवेटिव्स एलिमिनेट करने हैं। सो यू नीड टू इंटीग्रेट दैट इक्वेशन 2 टाइम्स। एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव खत्म होगा, दूसरी दफा इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरा डेरिवेटिव खत्म होगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। अच्छा, दिस इज हाउ इट वर्क्स। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको 3 दफा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल को कंसीडर करें तो इसमें एक डेरिवेटिव है, हमने इसको एक दफा इंटीग्रेशन की, एक दफा इंटीग्रेशन की तो आपके पास, जब आपने इंटीग्रेशन की तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा c इसमें। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में, कैलकुलस में आपने सीखा होगा ये, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में अगर आपने किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल लेना है x का, तो ये क्या होगा, x²/2 प्लस c। ये प्लस c हम करते हैं इंटीग्रेशन में, प्लस c क्यों करते हैं? कैन एनीवन टेल मी? एनीवन? सर क्योंकि जब डेरिवेटिव लेते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि उसके साथ पावर नहीं होती। So in order to recover that constant which we might have lose in the derivative of a function, in order to recover that constant we add some general constant in the function. This is the reason of adding that constant. I hope everyone knows. So एक दफा एक डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसको एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास फंक्शन आएगा, whether it is implicit or explicit, it doesn't matter. This will be the solution of this differential equation and we have to add a constant of integration in that solution, ठीक है। So इस जो solution होगा, in general इस solution को हम कैसे लिख सकते हैं, g of x, y and constant equal to 0. This solution must involve one constant of integration, one constant of integration, ठीक है, one constant of integration, ठीक है। अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन में टेक्निकली कितने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आने चाहिए? एनीवन? तो 2 आने चाहिए। 2 आने चाहिए, C1 एंड C2 इक्वल टू 0। अगर आपके पास 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके सॉल्यूशन में टेक्निकली आपके पास 3 कांस्टेंट आने चाहिए, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। जी जी बोले। सर जब आप एक कांस्टेंट है उसको आप फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो उसके साथ x की वैल्यू नहीं ऐड हो जाएगी डबल इंटीग्रल में? डेफिनेटली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर आप देखो कि आपके पास x प्लस c है, इसको इंटीग्रेट करोगे रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा? इसका आंसर क्या होगा? यू टेल मी।
सर x स्क्वायर ओवर 2 प्लस cx हाँ, x के प्लस x के बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस प्लस c1 या c2 जो भी प्लस सम अदर कांस्टेंट c2 b। यस सर यही है ना? कांस्टेंट ऑफ यस इंटीग्रेशन आपने डेफिनेटली ऐड करना है इवन इफ यू हैव ऑलरेडी अ कांस्टेंट इन द फंक्शन। सर दिस, नहीं वो मैं बोल रहा था फंक्शन फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो फिर हाँ तो जी, हम c1 c2 c3 नहीं लिखेंगे ना, फिर तो हम सिर्फ आखिरी वाला कांस्टेंट लिखेंगे क्योंकि नहीं उसके बेटा, साथ x आ गया अब तो। तो देखिए अब इस फंक्शन में कितने कांस्टेंट्स हैं? अननोन कांस्टेंट्स। सर एक ही है, मतलब दो हैं लेकिन उसके एक के साथ तो x आ गया तो वो तो मैं f ऑफ x वाले उसमें आ जाएगा ना। देखिए, मैं आपको कांस्टेंट टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं कांस्टेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये जो फंक्शन है अच्छा आपके पास, इसमें कितने अननोन कांस्टेंट्स हैं? सर दो। दो हैं, ठीक है। सर x एक भी है 3। एक देखें, इट इट एक और क्या है? सर c और d ऐड हुए हैं ना। हाँ, देखिए एक दफा आपने इसको इंटीग्रेट किया ना, आपके पास C1 कांस्टेंट आ गया, ठीक है। जब आप इसको दूसरी दफा इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास C1x प्लस C2 आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, तो आखिरी दो टर्म्स ये होंगी आपके पास। आर यू एग्री? यस सर। अब ये जो दोनों कांस्टेंट है C1 और C2, ये दोनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है या नहीं? सर बिल्कुल नहीं। तो दो कांस्टेंट हुए ना, फिर दोनों कांस्टेंट ऑफ ठीक है इंटीग्रेशन है तो दो कांस्टेंट हुए। ओके। बेशक उसके साथ x की टर्म आ गई एक के साथ, लेकिन द फर्स्ट कांस्टेंट इज स्टिल देयर which is an unknown constant. So we will consider that this solution contains two constants of integration because they are still constants and unknown constants. ठीक है? तो this basically second order differential equation में अगर आप दो दफा इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास दो सॉल्यूशन में आपके पास दो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होंगे, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। लेट्स डिस्कस दिस इन द फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें मैंने जो बातें पहले कही हैं वो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसको हम पैरामीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर क्यों कहेंगे? देखें आपके पास ये सॉल्यूशन है, ये वाला, इसको हम इन जनरल इस फॉर्म में लिखेंगे। अब आपके पास ये सॉल्यूशन है, इसमें C जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? क्यों? एनीवन? अरेज? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो कांस्टेंट जो है वो रियल लाइन में से उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इट कुड बी एनी रियल नंबर, ठीक है। अब अगर आप इस जो रियल नंबर आया है आपके पास C, इसकी वैल्यू अगर आप R में वेरी करते हैं, C की वैल्यू R में कितनी पॉसिबल वैल्यूज है C की? कैन एनीवन टेल मी? सर इनफिनिटली मैनी रियल लाइन में आ जाता इनफिनिट मैनी वैल्यूज होंगी। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशंस होंगे, अगर इसमें C की वैल्यू चेंज करें तो सॉल्यूशंस चेंज होंगे, ठीक है। तो ये कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। वो सारे के सारे इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस जो होंगे उसको हम वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस कहेंगे, ठीक है। वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस, या उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये जो सॉल्यूशन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें एक पैरामीटर है, सो इसको हम वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, या इसको हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। आई होप यू गेट इट। इसी तरह अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कि यहाँ पे है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे, तो इसको हम टू पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस कहेंगे क्योंकि ये इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं, या इसको हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरह अगर आपके पास nth ऑर्डर OD है, उसको n टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास n इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट्स आएंगे, तो वो आपके पास n पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, या इसको जनरल सॉल्यूशन कहेंगे।
दिस इज व्हाट द फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने ये एग्जांपल एक लिखी है। अस्यूम दैट, या बल्कि आप ये देखें कि ये यू कैन प्रूव दैट दिस फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इट इज नॉन लीनियर, ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है, अगर इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम वेरी करते जाएं तो आपके पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे? इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, ये ग्राफ बनाते जाएं, सी की वैल्यूज चेंज करते जाएं तो आपके पास सॉल्यूशंस खत्म नहीं होंगे। यू विल हैव इनफिनिट मेनी कर्व्स ऑफ दिस काइंड। सो दिस इज बेसिकली जनरल सॉल्यूशन या वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अगर हम ये कहें कि सी की कोई वैल्यू हम पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, सी की वैल्यू हम कह देते हैं कि सी की वैल्यू 0 है, तो इस सॉल्यूशन से आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा x स्क्वायर। ये जो होगा इसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह c की वैल्यू अगर आप 5 अस्यूम कर लें तो ये भी आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। A particular solution is a solution which can be obtained from the general solution by assuming some particular values of the constants. ठीक है, that is called a particular solution of a differential equation. I hope you get it. So I repeat, particular solutions कौन से solution होते हैं? A particular solution is a solution which can be obtained from the general solution by inserting particular values of the parameters. ठीक है, अगर दो पैरामीटर्स हैं तो दोनों की पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करेंगे, you get one particular solution. And particular solution can always be obtained from the general solution. ठीक है, I hope you get it. If you have any question, you can ask me. ये हम बाद में देखते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद हमारे पास एक सिंगुलर सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन शायद मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में ऐड की है, लेकिन लेट्स डिस्कस इट हियर, वी हैव टाइम। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ ODE, a solution which cannot be obtained from the general solution is called a singular solution. देखें, ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाली, इसका जनरल सॉल्यूशन ये है। ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, इनफिनिट में नहीं है। आप कांस्टेंट की वैल्यू पर्टिकुलर करते जाएं, सॉल्यूशन आते जाएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एनी सॉल्यूशन which cannot be obtained from the general solution, but still that is a solution of the given differential equation, is called a singular solution of differential equation. Maslan, can anyone tell me, can you guess another solution of this differential equation? We have already discussed a very simple one. Anyone? पहले हमने एक सॉल्यूशन डिस्कस किया था which was obvious solution. हमने इसको क्या कहा था? क्यों जी? अदीन, अरीब, हमजा, जीरो था ना वो, जीरो, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब आप देखें, इस इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुट करें इस इक्वेशन में दोनों साइड्स पे, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो y इज इक्वल टू 0 इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कैन वी ऑब्टेन दिस ट्रिवियल सॉल्यूशन, कैन वी ऑब्टेन this trivial solution y is equal to 0 from the general solution by substituting any particular value of c? यस सर, -5 अगर डाल दें तो आ जाएगा।
क्या c की वैल्यू -5 डालनी है ना? सर सी नहीं, एक्स की वैल्यू। x की एक वैल्यू तो नहीं होगी, x तो पूरा फंक्शन होगा ना यार, ये पूरा फंक्शन है x। x फंक्शन तभी होगा जब x वेरी करेगा पूरी रियल लाइन पे, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, which can be obtained by inserting particular value of a constant only, not x, ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू 0 ली है, यहाँ पे c की वैल्यू 5 ली है। सो दीज आर टू पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। अगर आप x की पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे वो तो सॉल्यूशन नहीं रहेगा, वो तो कांस्टेंट रह जाएगा, एक पॉइंट रह जाएगा, ठीक है। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लें, वो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसा सॉल्यूशन भी है जो कि हम जनरल सॉल्यूशन से हम डिराइव ना कर सके, ठीक है। Can we obtain y is equal to 0 as a solution of this differential equation from the general solution by inserting any particular value of c? Is this possible? क्यों शेर यार? अरेज No, sir. That's why it will be a particular solution. ठीक है, we cannot सर ले obtain। सकते हैं जी बोलें, कौन कह रहे हैं ले सकते हैं? सर, अगर -x डाल दें हम c की वैल्यू, तो जो भी x की वैल्यू होगी वो काउंटर हो जाएगी ना। बेटा जी, ना x c बन सकता है ना c x बन सकता है। c कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। c में हम x की वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते और x में हम c की वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि x इज अ वेरिएबल ऑफ द फंक्शन एंड c इज द कांस्टेंट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। c को आप -x नहीं ले सकते, c कांस्टेंट है। c किसको बिलोंग करता है? c r को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। c is a parameter, c cannot be the variable x, ठीक है। By keeping these things in mind, can we obtain y is equal to 0 from this solution? No. So this is called singular solution of the given ODE. Okay. I hope you get it. If you have any confusion, you can ask me. Okay, can you, if you have any question, you can ask me. We'll discuss initial value problems tomorrow. Let's discuss a couple of applications of differential equations. Particularly, पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक दो एप्लीकेशंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। मसलन ये एप्लीकेशन है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? अगर मेरे पास एक चाय का कप पड़ा हुआ है, ठीक है, ये चाय में पी रहा था, ठंडी हो गई है। चाय जब आप गरम गरम इसमें डालते हैं तो जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर, जब आप किसी बर्तन से चाय या थर्मस से चाय इसमें डालेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? 100। We assume that initial उसका चाय का टेम्परेचर जो है 100 है, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? आपकी जो रूम टेम्परेचर है दैट इज ऑलमोस्ट आजकल 40 से 42 के दरमियान रूम का टेम्परेचर होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स। चाय का टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर डिफरेंस है। और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या है कि ये जो दो बॉडीज हैं, चाय और रूम टेम्परेचर जो एयर है, ये आपस में एक दूसरे का टेम्परेचर जो है वो क्या करेंगी? इसको न्यूट्रलाइज करेंगी आहिस्ता आहिस्ता। चाय का टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो ठीक है, और रूम का टेम्परेचर उसकी वजह से उससे उसमें बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर 10 to 15 मिनट्स चाय और रूम टेम्परेचर जो है वो दोनों एक ही लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। सो हाउ टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, how to transform this phenomena into a mathematical equation, we can use differential equations to describe this phenomenon.
तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है चाय का, वो डिक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज जो है, वो चाय का टेम्परेचर जो है वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ऑफ टी माइनस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, विच इज कॉल्ड एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर। ये rate of change of the temperature of tea is proportional to the difference between the temperature of tea minus the surrounding temperature, which is called ambient temperature. ठीक है, अगर हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो आपके पास एक यहाँ पे कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, k, यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पे कांस्टेंट आना चाहिए k, which is the constant of proportionality. ठीक है, what you obtain here, you obtain a differential equation of first order. Okay. Somebody is asking question in the temperature. Yes. No, there's no question. अब ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर solution आ जाएगा, which will be the function of t. You can say it as a function of t. अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा t, which is basically a function of t. ठीक है, अब ये t हमें क्या बताएगा कि किस टाइम पे क्या टेम्परेचर है चाय का। ठीक है, अगर इनिशियली चाय का टेम्परेचर 100 डिग्री है तो आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज होता होता रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इनिशियल टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाय जब हमने इसको कप में डाली तो इनिशियल टेम्परेचर क्या था? वी कैन मेजर दैट टेम्परेचर बाय यूजिंग अ टेम्परेचर मेजरिंग मशीन। कोई भी गैजेट है या डिवाइस है, उससे हम इनिशियल टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। हमने उस इनिशियल टेम्परेचर को भी यहाँ पे नोट किया कि इनिशियली उसका टेम्परेचर क्या होगा चाय का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने उसको कहा कि टी नॉट पे मींस इनिशियल टाइम पे या जीरो टाइम पे चाय का टेम्परेचर जो था वो टी नॉट था। यहाँ पे टी नॉट कुड बी 100 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, 100 डिग्री सी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इनिशियल, what is the initial temperature of the tea, and why is this important? This initial temperature, which we call initial condition, ठीक है, initial condition of the physical phenomena under consideration, इसको हम initial condition कहेंगे। And this initial condition helps us to find value of the parameter C in the general solution of ODE. Can you see this, what I have written in the green arrays? Can you see this? Yes, sir, I can see it. Okay. अच्छा, ये इनिशियल टेम्परेचर मैंने आपको क्यों बताया कि क्यों जरूरी है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हम एक इनिशियल कंडीशन डिफाइन करते हैं। ये इनिशियल कंडीशन क्या होती है? जो फिजिकल फिनोमेना है उसकी इनिशियल स्टेट पे जो भी आपका रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसकी क्या वैल्यू है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर को हम डिस्कस कर रहे हैं, चाय के टेम्परेचर को। तो जब आपने चाय डाली कप में तो उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। This is called initial condition, and this initial condition help us to find the parameter in the general solution of the differential equation. ठीक है, मतलब अगर आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन आएगा, g of t इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये आपका जो c होगा ये क्या होगा? पैरामीटर होगा। इस c को फाइंड करने के लिए ये जो इनिशियल कंडीशन है ये हमें हेल्प करती है। अब आपके पास अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है
और उसके सोल्यूशन में, उसके जनरल सोल्यूशन में एक कांस्टेंट है, तो कितनी इनिशियल कंडीशन चाहिए होंगी हमें? एक। अगर आपके पास पैरामीटर दो हैं, ठीक है, मतलब x, c1, c2, तो ये दोनों कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, दोनों कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हाउ मेनी इनिशियल कंडीशन डू यू नीड? यू नीड टू कंडीशन, ठीक है, टू कंडीशन, दो इनिशियल कंडीशन होंगी। इसी तरह अगर तीन पैरामीटर फैमिली का जनरल सॉल्यूशन है, तो यू नीड टू हैव थ्री इनिशियल कंडीशंस इन ऑर्डर टू फाइंड दीज कांस्टेंट्स। तो इस तरह का जो कंप्लीट सेट ऑफ इक्वेशन है, एन इक्वेशन टुगेदर विद इनिशियल कंडीशन, इट इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, which you can see on the previous slides, मैंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने इसको। in order to find specific values of the parameters in the family of solutions, additional conditions are needed along with the ODE, ठीक है, and that initial condition is what? Additional condition is what we call it initial condition, and this condition we usually define on the initial value of the independent variable. यहाँ पे independent variable x है, तो y at x equal to a, initial value पे हमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, अगर एक पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है। सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपके पास ऑफ कोर्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, तो पहली इनिशियल कंडीशन डिस्प्लेसमेंट फंक्शन पे होगी, दूसरी इनिशियल कंडीशन डेरिवेटिव फंक्शन पे होगी, मींस वेलोसिटी फंक्शन पे होगी, ठीक है। या अगर आपके पास इनिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो डेरिवेटिव्स हैं, तो आपके पास पहली इनिशियल कंडीशन y पे होगी, दूसरी y डैश पे होगी, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इनिशियल स्टेट पे होगी, इनिशियल स्टेट पे। ये x इक्वल टू x वेरी करता है बिटवीन a एंड b, तो x की जो इनिशियल वैल्यू है उस पे कंडीशन हम डिफाइन करते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट इनिशियल कंडीशन, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इनिशियल स्टेट पे आप वो कंडीशन डिफाइन करते हो, तो इसलिए हम इसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं। तो अगर हमें ये दोनों कंडीशन गिवन है, तो फैमिली ऑफ सॉल्यूशन में जो दो कांस्टेंट्स हैं c1 c2, ये हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग these two conditions, then we will get a particular solution, but a particular solution which suits our situation or our phenomena, ठीक है। जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में हमने जो चाय की एग्जांपल दी, उसमें इनिशियल कंडीशन हमने खुद से एक्सपेरिमेंटली हमने वो काउंट करनी है कि इनिशियल टेम्परेचर चाय का क्या है, ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल कंडीशन को, ठीक है, बाय यूजिंग सम डिवाइस। तो ये कंडीशन जो है हमें हेल्प करेंगी कांस्टेंट फाइंड करने में, पैरामीटर्स फाइंड करने में। एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग इज फर्स्ट ऑर्डर ODE, फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। अगर ये सेकंड ऑर्डर है, तो उसको सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसका ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन डिफाइन है, इसका जनरल सॉल्यूशन ये है, हमने पहले पिछली स्लाइड्स पे देखा था कि इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब हाउ टू यूज दिस इनिशियल कंडीशन? इनिशियल कंडीशन क्या है? ये है। इस इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है? x इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू क्या है? 16, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो विद इन दिस है ये y ऑफ x है, तो x जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 16 है, तो x 0 y इज इक्वल टू 16 इस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दें आप, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 16 आ जाएगी, ठीक है, 16 x की वैल्यू 0, तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, c की वैल्यू 4 पुट कर दें, तो आपके पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो ये आ जाएगा, which satisfies this initial condition as well,
अब ये जो solution होगा, this solution should satisfy initial condition. ये solution जो है ये initial condition को satisfy कर रहा है या नहीं कर रहा? Initial condition को कैसे check करेंगे? अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू क्या आती है? 16, which is true. x 0 पुट करें तो y 16 है. So this solution satisfies the initial condition. So this is a particular solution which we wanted or which suits our situation. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. Similarly, अगर हम nth order initial value problem को देखें तो हमें n initial conditions चाहिए होंगी and we can find n values of n parameters in that initial value problem. This is called nth order initial value problem. If you have any question, you can ask me. Otherwise, we stop till here today. ये एक application थी. Another application I have added here, spread of a disease. इसको आप देखिएगा. I hope you understand. If you have any question, you can ask me in the next lecture tomorrow. Okay.